নমস্কাৰ টাইমিটাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছো। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত তেলেংগানাত এটা মন্তব্য কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে দেশৰ পৰা বাবৰ ঔৰংগজেব নিজাম আৰু আসাদুদ্দিন ওৱেইচি নাইকিয়া হৈ যাব, দেশ এই সকল লোকৰ পৰা মুক্ত হ'ব। আজি তেলেংগানাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। টাইমিট বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত জনাই আছো, বাবৰ ঔৰংগজেব নিজাম আৰু ওৱেইচিৰ পৰা ভাৰত মুক্ত হ'ব। এই মন্তব্য কৰিছে এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই সকলৰ পৰা দেশক মুক্ত কৰি যাবলৈ আমি আগবাঢ়ি যাম। ইয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে, ভাৰতত এতিয়া এনে কামেই হ'ব, অৰ্থাৎ ভাৰত এই সকল লোকৰ পৰা মুক্ত কৰা হ'ব। বাবৰ যিদৰে শেষ হৈ গ'ল, আসাদুদ্দিন ওৱেইচিও সেইদৰে শেষ হৈ যাব। ইয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত মন্তব্য কৰিছে, কংগ্ৰেছে বাবৰ আৰু ঔৰংগজেবক লগত লৈ শাসন চলোৱাৰ কথা ভাবিছিল। দেশে সিদ্ধান্ত ললে বাবৰ আৰু ঔৰংগজেব ভাৰতত নচলিব আৰু তাৰ বাবে কংগ্ৰেছ নাইকিয়া হৈ গ'ল। ঠিক একেদৰে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিও বেছিদিন নচলে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি আসাদুদ্দিন ওৱেইচিক এইদৰে কটাক্ষ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাৰতত যিদৰে আৰ্টিকল 370 নাইকিয়া হৈ গ'ল, ঠিক সেইদৰে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ কাম ভাৰতত আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ভাৰতত এনে কামেই ধাৰাবাহিকভাৱে হ'ব। আৰু এই ভাৰতত ঠিক সেইদৰে তেলেংগানাৰ পৰা নিজামৰ নাম নিচান নাইকিয়া হৈ যাব। তেলেংগানাত এই মন্তব্য কৰিছে, কৈছে নিজামৰ দৰে আসাদুদ্দিন ওৱেইচিৰো নাম নিচান নাইকিয়া হৈ যাব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে তেলেংগানাৰ বিজেপিৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাতে তেওঁ এই মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ কৈছে ভাৰত এতিয়া জাগি উঠিছে, সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি কৰা লোকক ভাৰতে মানি নলয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা তেলেংগানাৰ এখন জনসভাত মন্তব্য কৰা হৈছে। তাৰ লগতে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাওকো অৰ্থাৎ কেচিআৰকো সমালোচনা কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কেচিআৰে হ'ব লাগে আয়ে নহয়, কেচিআৰে বিয়পাইছে পৰিয়ালবাদ, এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি এনেকুৱা এখন ভাৰত নিৰ্মাণ কৰিব লাগে য'ত ঔৰংগজেব, বাবৰ, নিজাম, আসাদুদ্দিন ওৱেইচিৰ কোনো ধৰণৰ স্থান নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। আমি এনেকুৱা এখন ভাৰত নিৰ্মাণ কৰিব লাগে য'ত বাবৰৰ কোনো স্থান নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মন্তব্য কৰা হৈছে। যিখন ভাৰতত নিজামৰ ইতিহাসৰ কথা কোনেও নপঢ়িব, তেনেকুৱা এখন ভাৰত আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে। আৰু এইদৰে বৰ্তমান সময়ত যিখন ভাৰত সলনি হৈছে, সলনি হোৱা ভাৰতক আমি আগুৱাই নিব লাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেলেংগানাত এই মুহূৰ্তত মন্তব্য কৰিছে। আমাৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰী সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছো। तो आपका बहुत दिन रात चलने वाला नहीं है, वो दिन चला नहीं पाएगा। बाबर जैसा खत्म हो गया, ओवैसे भी खत्म हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा। भारत में ऐसा एक अहंग था, कांग्रेस का भी अहंकार था कि बाबर और औरंगजेब को लेके हम लोग बहुत दिन चल पाएगा, लेकिन देश ने निर्णय किया कि बाबर और औरंगजेब चलेगा नहीं। केसीआर साहब, वो ओवैसी वाला चक्कर भी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। भारत बाबर औरंगजेब मुक्त होने उसी रास्ते और वही काम होगा। अभी भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना, यहाँ में का नाम ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। कोई सुडू सेकुलरिस्ट या कम्युनल पॉलिटिक्स वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर गारू जी का जीवन में बेटा का मुख्यमंत्री, बेटा का बाद उनका गृह बताओ। अगर पेट में कोई है उनके लिए भी प्लान करो, वो भी कैसे सीएम बन पाएगा। ऐसे क्या देश चलता है?
आज नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नया रास्ता दिखाया, देश को नया रास्ता दिखाया कि परिवार का नहीं है, देश भारत का जनता का है, वासी का है, चलता है। देश चलेगा नहीं होता है। आपको दलित का घर, दलित को आपको घर में बुलाना पड़ेगा, में बैठना पड़ेगा, डेली 500,000 लोगों को आपको मिलना पड़ेगा। अगर सरकारी कर्मचारी एजिटेशन कर रहा है तो उनका बात सुनना पड़ेगा, और आप अगर उनका 2023 में आपका बात भी कोई नहीं सुनेगा, आपका बात भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो ऐसे भाइयों और बहनों, अभी हम लोग को शपथ लेना है, एक नया भारत का हम लोग को निर्माण करना है, जो भारत में कोई ओवैसी का जगह नहीं, भारत में औरंगजेब का जगह नहीं होगा, जो भारत में बाबर का जगह नहीं होगा, जो भारत में कोई निजाम का हिस्ट्री लोग नहीं पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हिस्ट्री पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा तो हमारा भीम का नाम भीम का पढ़ेगा, रानी रुद्रानी देवी का पढ़ेगा, काकतिया का जो पसंद राज लोग था, वॉरियर्स था, उनका हिस्ट्री पढ़ेगा। अभी निजाम का और हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ेगा। भारत बदल गया है और बदलते हुए भारत को हम लोग को आगे ले जाना है। तो आपका बहुत दिन रात चलने वाला नहीं है, ओवैसी आपको बहुत दिन चला नहीं पाएगा। बाबर जैसा खत्म हो गया, ओवैसी भी खत्म हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा। भारत में ऐसा एक अहंग था, कांग्रेस का भी अहंकार था कि बाबर और औरंगजेब को लेके हम लोग बहुत दिन चल पाएगा, लेकिन देश ने निर्णय किया कि बाबर और औरंगजेब चलेगा नहीं। केसीआर साहब, वो ओवैसी वाला चक्कर भी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। भारत बाबर औरंगजेब, निजाम और ओवैसी से मुक्त होने वाला है, और हम उसी रास्ता में चल पड़ा है और वही काम होगा। अभी भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुडू सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनल पॉलिटिक्स करता है, वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर गारू जी का जीवन में क्या है? अपना बेटा का मुख्यमंत्री बनाओ, बेटा का बाद उनका ग्रैंडसन को मुख्यमंत्री बताओ, अगर पेट में कोई है उनके लिए भी प्लान करो, वो भी कैसे सीएम बन पाएगा? ऐसे क्या देश चलता है? आज नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नया रास्ता दिखाया, देश को नया रास्ता दिखाया कि देश कोई परिवार का नहीं है, देश भारत का जनता का है, 100 करोड़ भारतवासी का है। ऐसे नहीं चलता है, कोई फार्म हाउस में बैठेगा और प्रदेश चलेगा। अरे भाई, ऐसे नहीं होता है। आपको दलित का घर में जाना पड़ेगा, दलित को आपको घर में बुलाना पड़ेगा, आपको सेक्रेटरिएट में बैठना पड़ेगा, डेली 500,000 लोगों को आपको मिलना पड़ेगा। अगर सरकारी कर्मचारी एजिटेशन कर रहा है तो उनको घर के बुला के उनका बात सुनना पड़ेगा, और आप अगर उनका बात नहीं सुनेगा, 2023 में आपका बात भी कोई नहीं सुनेगा, आपका बात भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो ऐसे भाइयों और बहनों, अभी हम लोग को शपथ लेना है, एक नया भारत का हम लोग को निर्माण करना है, जो भारत में कोई ओवैसी का जगह नहीं है, जो भारत में औरंगजेब का जगह नहीं होगा, जो भारत में बाबर का जगह नहीं होगा, जो भारत में कोई निजाम का हिस्ट्री लोग नहीं पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हिस्ट्री पढ़ेगा। अगर कोई भारत में हिस्ट्री पढ़ेगा
तो हमारा भीम का नाम भीम का पढ़ेगा, रानी रुद्रानी देवी का पढ़ेगा, काकतिया का जो पसंद राजलोक था, वेरियर्स था, उनका हिस्ट्री पढ़ेगा। अभी निजाम का और हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ेगा। भारत बदल गया है और बदलते हुए भारत को हम लोग को आगे ले जाना है। तो आपका बहुत दिन रात